Good morning to all of you. Today we are going to cover your topic that is called spatial filtering in digital image processing. So first of all, we'll start with filters. Filter is a process that removes some unwanted components or small details in image. Whenever an image is consists of some unwanted components which is not required for an image, okay, we have to focus only object. Then only we are going to use filters. The types of filters we used in our DIP, that are spatial domain filters and frequency domain filters. In this video, we are specifically talk about the spatial filters and the types of the spatial filters. The spatial filter is just moving the filter mask from point to point in an image. Okay, the filter mask may be 3x3 or 5x5 or 9x9, 7x7, anything. Basically whenever we talk about spatial filtering, so it means we are talking about pixel to pixel. We are selecting among all the millions of pixel, we are going to select one single pixel and its neighboring pixel, and we are going to operate the function on a specific single pixel. तो जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल फिल्टरिंग, व्हेन वी आर टॉक अबाउट पिक्सल पॉइंट टू पॉइंट पिक्सिंग. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल फिल्टरिंग और मास्किंग भी कहते हैं, कभी कर्नल भी बोलते हैं. दे आर डिफरेंट नेम्स वी यूज फॉर spatial filtering. Now talking about your types, basically spatial filtering is of two types. One is smoothing spatial filtering, and another one is sharpening spatial filtering. In this video we'll specifically talk about smoothing spatial filter, as well as we know images of two types, linear and non-linear. Okay, so sorry, filters are linear and non-linear. Similarly, in this case also we are going to deal with spatial linear filter and spatial non-linear filter also. So talking about the smoothing spatial filter, it is used for blurring or for noise reduction. Specifically smoothing filter की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं blurring of image या noise reduction की. Blurring is used as pre-processing, such as removal of small details. For example, there is very small example and day to day life में हम यूज कर रहे हैं. आजकल जो हमारे मोबाइल्स हैं उनके अंदर बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है प्री प्रोसेसिंग. जैसे हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो जैसे सपोज एक मोड है, मैंने पोर्ट्रेट मोड यूज कर लिया वहां पे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक तरह से जो ऑब्जेक्ट है आपने आपने क्लिक करना है जिस ऑब्जेक्ट को, उसको फोकस करेगा. ठीक है, रेस्ट ऑफ द बैकग्राउंड को क्या कर देगा, ब्लर कर देगा. तो एक तरह से एक टाइप ऑफ एग्जांपल है वो स्मूथनिंग स्पेशल फिल्टर की, सिर्फ ऑब्जेक्ट को फोकस करना है, रेस्ट ऑफ को ब्लरिंग कर देना. ठीक है, सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लरिंग. इसको प्री प्रोसेसिंग के लिए भी कंसिडर करते हैं, और जो भी स्मॉल अनवांटेड डिटेल्स है उनको रिमूव करना, सिर्फ ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना, रेस्ट को आप रिमूव कर सकते हो. नॉइज रिडक्शन इन ब्लरिंग विद लीनियर और नॉन लीनियर फिल्टर्स. मैंने आपको बताया फिल्टर्स दो तरह के होते हैं, लीनियर नॉन लीनियर, तो दोनों तरह के फिल्टर्स आप यूज कर सकते हो इसमें. अब टॉकिंग अबाउट लीनियर नॉन लीनियर, इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं इसकी. टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ स्मूथनिंग फिल्टर्स, तो यहाँ पे दो तरह के फिल्टर्स आते हैं स्मूथनिंग फिल्टर्स में, नॉन लीनियर एंड लीनियर. लीनियर में जो फिल्टर्स आप यूज करते हैं उसको बोलते हैं एवरेजिंग फिल्टर, और जो नॉन लीनियर में यूज करते हैं उसको बोलते हैं मीडियन फिल्टर या मिनिमम मैक्सिमम फिल्टर. ठीक है, नाउ स्मूथनिंग विद लीनियर फिल्टर. ठीक है, फर्स्ट हम यूज करेंगे आपका एवरेजिंग फिल्टर. वन ऑफ द सिंपलेस्ट spatial filtering operation we can perform is smoothing operation. Please ignore my handwriting. Okay, so now simple average of all the pixels. I'm taking an example here. One second. Suppose I'm taking a matrix, journal matrix की बात करूंगी. ठीक है, मैंने मैट्रिक्स ले लिया 3x3 इस तरह से. 3x3 मैट्रिक्स ले लिया, सबकी वैल्यू क्या है, 1 1 1 1 1 1 1 1. जनरली आपका जो स्पेशल फिल्टरिंग ये आपका पिक्सल टू पिक्सल काम करता है. तो एक पिक्सल सिलेक्ट करेगा तो उसकी नेबरिंग कितने होंगे, 8 पिक्सल. ठीक है, तो मैक्सिमम 9 पिक्सल होगी. तो अगर मुझे एक भी चीज का एवरेज निकालना है, सपोज मैंने इसका एवरेज निकालना है, तो उसको किस तरह से लिख लेंगे, जो आपका पिक्सल का वैल्यू है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, जितने भी पिक्सल, टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आप यूज कर रहे हो, दैट इज 9. इट इज रिप्लेसेबल बाय दिस वन,
कि जब आप किसी का एवरेज निकाल दोगे कैसे लिखोगे इसको, 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9, इस फॉर्म में आप इसको शो करोगे. सिंपल एवरेज ऑल ऑफ पिक्सल्स इन ए नेबरहुड अराउंड ए सेंटर वैल्यू. जो भी आप सेंटर वैल्यू ले रहे हो, सपोज यू आर कंज्यूमिंग दिस वन, उसकी नेबरहुड वैल्यू इंक्लूडिंग दिस आर रिप्लेस्ड बाय द एवरेज वैल्यू. Also used for highlighting the gross detail. ओवरऑल डिटेल मतलब ग्रॉस मतलब ओवरऑल जो इमेज है और जो इसकी नेबरिंग है उनको पूरे ओवरऑल को शो करने के काम आता है. ओके, एक एग्जांपल लिए छोटी सी. सपोज दिस इज योर इनिशियल इमेज. ये इमेज है एफ ऑफ एक्स वाई. इस पूरी इमेज में मैंने एक पिक्सल पिक कर दिया, स्पेशल फिल्टरिंग लगानी है, एक सिंगल पिक्सल ले लिया. अब इस पिक्सल के जो नेबरिंग है वो भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं. सपोज ये मैंने उसका छोटा सा डायग्राम बनाया है, एक छोटा सा मैट्रिक्स शो कर दिया कि सपोज ये जो 3x3 मैट्रिक्स है इसकी ये वैल्यूज है 104 100 108 99, ये आपकी गिवन वैल्यूज है. ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, एवरेज फिल्टरिंग लगानी है. अब एवरेज फिल्टरिंग आप कौन से पिक्सल पे लगाते हो, सेंटर पिक्सल पे लगाते हो. 106 पे लगेगा. कैसे लगेगा, ये जो 106 है ये एक जर्नल फिल्टर से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हमने फर्स्ट निकाला. ये आपका जर्नल रजिस्टर था, इसके साथ इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, तो किस तरह से फॉर्म बनेगा आपका, इसकी वैल्यू रिप्लेस होगी किससे, 1/9 the center value is multiplied by 1/106 plus 1/9 multiplied by 104, 1/9 multiplied by 100 plus 1/9 multiplied by 108 plus 1/9 multiplied by 99 plus and so on. सारी वैल्यूज आप इस तरह से मेंशन करोगे. जो न्यू वैल्यू फॉर्म होगी दैट इज 98.333 which is approximately equal to 93. सो जो न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसमें आपका ये जो सेंटर वैल्यू है इसका एवरेज जो निकल के आया है वो क्या है, 98. तो दिस वैल्यू इज रिप्लेस्ड बाय 98.33, अप्रोक्सीमेटली 98. ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, एवरेज फिल्टरिंग. द आउटपुट ऑफ द लीनियर स्पेशियल फिल्टर computer computes the average of pixels is called average filtering or low pass filter. The major use for this filter is reduction of irrelevant details in an image. ये फर्स्ट टाइप होगी. Now coming to the second one, that is called non-linear spatial filters. First हमने linear spatial filters के बारे में पढ़ा था. Second is your non-linear. Non-linear के अंदर दो आते हैं, median, maximum, minimum. This filter ordering the pixel by replacing the value of center pixel with the value of the rank list. आप क्या करोगे इसमें, जो भी आप पिक्सल कंसीडर करोगे, जो भी मैट्रिक्स लोगे, उसमें जो सेंटर वैल्यू है, जो भी आप पिक्सल सेलेक्ट कर रहे हो उसका सेंटर वैल्यू उसको रिप्लेस करोगे, एक रैंक लिस्ट बनाओगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसका जो मीडियन निकलेगा उस वैल्यू से आप रिप्लेस करोगे. द बेस्ट नोन फिल्टर इन दिस कैटेगरी इज मीडियन फिल्टर. इस तरह के ऑपरेशंस के लिए आप मीडियन फिल्टर ही यूज करते हो. दिस इज बेस्ट फॉर नॉइस रिडक्शन. पहला वाला जो था आपका averaging, it is used for blurring, and this is specifically used for noise reduction. This median filter is effective for impulse noise called salt and pepper noise. ये salt और pepper noise specially हम use करते हैं. What is salt and pepper noise? Salt noise में क्या होता है, pepper noise में क्या होता है, suppose I am considering this pixels 10 10 10 10 10 10 10 251 251. तो आप देख सकते हो we know from 0 to 255 scale, 0 means black and 255 means white, and between 0 to 255 there are shades of gray, darkish gray, light gray, medium gray. ठीक है, तो हमें पता है ये जो 10 10 है ये नियर बाय ब्लैक है, तो ये ब्लैकिश ग्रे कलर है, तो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड ज्यादा बनेगा. 251 क्या है, नियर बाय व्हाइट है, तो ये व्हाइटिश कलर है. तो हम देख सकते हैं व्हाइट पिक्सल्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू योर ब्लैक पिक्सल्स. ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम, व्हाइट पिक्सल्स इन ब्लैक बैकग्राउंड. ब्लैक ज्यादा है तो ब्लैक बैकग्राउंड में आ जाएगा, और व्हाइट कम है तो उसको क्या बोलोगे आप, व्हाइट पिक्सल इन ब्लैक बैकग्राउंड. तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट नॉइस, बिकॉज सॉल्ट इज व्हाइट इन कलर. सो उसको हम क्या बोलेंगे, इट एक्ट एज ए नॉइस हियर. व्हेन वी टॉक अबाउट द पेपर, पेपर हमें पता है क्या होता है, काले मिर्च, तो इट इज ब्लैकिश इन कलर. So here the matrix is 253 253 253 253 10 10. So there are only two values of 10. So in this case you can say black pixel in white background. There are very few pixels of black. So यहाँ पे ब्लैक पिक्सल है और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेपर नॉइज. ज्यादा मीडियम फिल्टर हम सॉल्ट एंड पेपर नॉइज के लिए यूज करते हैं. कैसे यूज करते हैं,
अब देखो, अब इसमें क्या है, मैंने ये आपका ले लिया आपका, जैसे सपोज फर्स्ट एग्जांपल लिए, इसमें ये मैट्रिक्स ले लिया आपका। अब इसमें हमने 10 कंसीडर करा है यहाँ पे। अब इसकी रैंक लिस्ट बना देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके वजह से कैसे लिखेंगे, 10 10 10 10 10 10 10 251 251। जो सेंटर वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, 10। सो ओवरऑल जो आपका रिप्लेसमेंट होता जाएगा इसमें ब्लॉक शिफ्टिंग के कारण करते करते, इस तरह से आपका न्यू अप्लाई करके मीडियन फिल्टर, इस तरह से आपका रिजल्टन आ जाएगा। सेम विद दिस ऑल्सो। there are two types of filters in ये non-linear filters में, maximum filter and minimum filter. It is used for special filtering. This is used for finding the brightest point of the image. सबसे bright point आपका image का ढूंढना हो तो आप maximum filter use करते हो, और उसको replace करते हो center pixel के साथ। और इसमें क्या होता है, जो dullest point होता है उस image का, उसको आप replace करते हो minimum filter के साथ। ठीक है, I hope you understand the topic. Thank you very much.